ایک ایسا مرڈر جس کو پولیس کبھی ٹریس نہیں کر سکتی۔ سال 1924 شکاگو یونیورسٹی ایلینوائے کے دو اسٹوڈنٹس اور فرینڈس نیتھن لیوپولڈ اور رچرڈ لوب نے جرمن فلاسفر فریڈرک نیچے کی ایک کتاب تھس سپوک زاراتھوسترا میں دی گئی فلسفی کانسیپٹ اوبرمنش یعنی سپر ہیرو سے انسپائر ہو کر 14 سالہ بوبی فرینک کی جان لی۔ ایک کتاب کی فلسفی سے انسپائر ہو کر ان دو ہائیلی انٹلیکچوئل بوائز نے ایک انسان کی جان لے لی۔ So let's dive deep into the case of Nathan Leopold and Richard Loeb, the perfect crime. اگر ہم کسی کرائم کیس کو اسٹڈی کریں تو ہمیشہ اس کے پیچھے کچھ گنے چنے موٹیو ہوتے ہیں، جیسے ریج، فائنینشیل سیکیورٹی، پرسنل ایشوز یا پھر اور کوئی۔ لیکن اس کیس کے پیچھے کا موٹیو کافی بیزار تھا۔ وہ ایک پرفیکٹ کرائم کمٹ کرنا چاہتے تھے، ایک ایسا کرائم جو انہیں انٹلیکچولی سیٹسفائی کرے کہ وہ 99% سوسائٹی سے سپیریئر ہیں۔ اسی بیزار موٹیو کی وجہ سے اس کیس کو کرائم آف دا سینچری کا نام دیا گیا۔ لیکن ایک کتاب کی فلسفی کسی انسان کو اتنے بڑے قدم پر کیسے مجبور کر سکتی ہے، اور ایک انسان کس طرح ایک فلسفی کو، ایک پیس آف لٹریچر کو مس انٹرپریٹ کر کر مس یوز کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ان دونوں کی اپ برنگنگ کی تو وہ دونوں ساؤتھ شکاگو کے ایک ایفلوئنٹ علاقے کین ووڈ میں رہا کرتے تھے، اور لیوپولڈ اینڈ لوب دونوں کافی ویلدی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر ہم لیوپولڈ کی بات کریں تو وہ بچپن سے ہی اپنے عمر کے بچوں سے کافی مختلف تھا۔ وہ انٹلیکچولی دوسرے بچوں سے کئی گنا زیادہ شارپ تھا۔ اس نے اپنی گریجویشن شکاگو یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی، اور اس کی ذہانت کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ 15 لینگویجز جانتا تھا، جن میں سے وہ 5 لینگویجز فلوئنٹلی بول بھی سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہی واز اے فین آف ڈیپ فلاسافیکل ٹاکس، اسے فلسفی پر بات کرنا کافی پسند تھی۔ اس کے علاوہ لوب بھی لیوپولڈ کی طرح انٹلیکچولی شارپ تھا۔ لوب 17 سال کی عمر میں یونیورسٹی آف مشیگن کا ینگیسٹ گریجویٹ بنا، جس کے بعد اس نے شکاگو یونیورسٹی ایلینوائے میں ایڈمیشن لیا۔ اگر ہم لوب کے ایریا آف انٹرسٹ کی بات کریں تو اسے ہسٹری اور کرائم سٹوریز کافی پسند تھی۔ وہ ہمیشہ کرائم سٹوریز پڑھا کرتا تھا۔ لیوپولڈ اور لوب بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے کیونکہ وہ ایک ہی نیبرہڈ میں رہا کرتے تھے۔ لوب بچپن میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تاکہ وہ اپنی سکلز لیوپولڈ کو دکھا سکے، اور لیوپولڈ اس کے ان ایکشن کو فلسافیکلی جسٹیفائی کرتا تھا۔ ان دونوں کی دوستی شکاگو یونیورسٹی میں مزید گہری ہوئی، اور اسی دوران وہ فریڈرک نیچے کو پڑھنے لگے، اور نیچے کی فلسفی اوبرمنش نے ان دونوں کو بہت زیادہ فیسینیٹ کیا۔ اب فریڈرک نیچے نے اپنی ایک کتاب تھس سپوک زاراتھوسترا میں ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اس کانسیپٹ کا نام ہے اوبرمنش۔ اوبرمنش یعنی سپر ہیرو ایک ایسا انڈیویجول ہے جو ان یوزول اور ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز کا مالک ہے۔ اوبرمنش ہائیسٹ اسٹیج آف ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو 99% سوسائٹی سے سپیریئر ہے۔ اوبرمنش ایک ایسا انڈیویجول ہے جو سوسائٹی کے کسی بھی لا، کسی بھی کنسٹرینٹ سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے خود قانون بناتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو شیپ موریلٹی کو چھوڑ کر انڈیویجولی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ناہلزم کو ختم کرنے کے لیے نیچے نے یہ کنسیپٹ دیا تھا تاکہ انسان اپنی کیپیبلٹیز کو جان کر ایک ایسا راستہ اختیار کرے جو اسے سوسائٹی سے سپیریئر بنا دے۔ اب نیتھن لیوپولڈ اور رچرڈ لوب نے اس کانسیپٹ کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کر ایک اور نظریہ دیا۔ لیوپولڈ یہ مانتا تھا کہ وہ دونوں بھی اوبرمنش بن سکتے ہیں، اور وہ سوسائٹی سے سپیریئر ہیں، اور خود کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک مرڈر پلان کیا، ایک ایسا مرڈر جس کو پولیس کبھی ٹریس نہیں کر سکتی۔ لیوپولڈ کی فلسفی کے ساتھ محبت اور لوب کا کرائم سٹوریز میں انٹرسٹ، ان دونوں چیزوں نے انہیں ایک پرفیکٹ کرائم کمٹ کرنے پر مجبور کیا۔ ایک ایسا کرائم جس میں فلسفی اور کرائم سٹوریز دونوں کا پارٹ شامل تھا۔
वो दोनों मानते थे कि वो एक ऐसा क्राइम कमिट करेंगे जिसको पुलिस कभी ट्रेस न कर सके, और वो क्राइम उन्हें इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो खुद को सुपरमैन मानते थे और ये बिलीव करते थे कि वो सोसाइटी के किसी भी कानून को मानने के लिए बाउंड नहीं है और उन पर सोसाइटी का कोई भी लॉ लागू नहीं होता। अब इन दोनों हाईली इंटेलेक्चुअल बॉयज ने 7 महीने के लंबे अरसे में एक मर्डर की प्लानिंग की। विक्टिम को सिलेक्ट करने से लेकर उसकी बॉडी के डिस्पोजल तक उन्होंने एक सॉलिड प्लान तैयार किया। उनके मुताबिक एक ऐसा प्लान जिसको कोई कभी ट्रेस न कर सके, और उनका विक्टिम था बॉबी फ्रैंक, 14 साल का बच्चा जो केनवुड के ही इलाके में रहा करता था और वो उनका नेबर था। बॉबी अक्सर लोब की रेजिडेंस में टेनिस रैकेट खेला करता था। अब जो उन दोनों ने विक्टिम चूज किया था वो एक ऐसा इंसान था जिसको वो ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेंज को अपनी बातों में फंसाना ज्यादा मुश्किल होगा बजाय उसके कि जिसको आप जानते हो। 7 महीने की एक लंबी प्लानिंग के बाद अब टाइम था इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। उन दोनों ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के फेटर्निटी हाउस में से कैमरा, पेन नाइफ्स और टाइपराइटर चोरी किया, वो चीजें जो उन्हें मर्डर के दौरान जरूरत आ सकती हैं। इसके अलावा लिपोर्ड ने एक फेक नाम मार्टिन डी बैलेट बताकर एक कार रेंट पर ली, और अब टाइम था उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। 21 मई 1924 की शाम जब बॉबी स्कूल से घर वापस आ रहा था तो लिपोर्ड और लोब ने वो रेंटेड कार बॉबी के पास आकर रोकी और उसे लिफ्ट ऑफर की। पहले तो बॉबी ने उस कार में बैठने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका घर कुछ ही फासले दूरी पर था, लेकिन लोब ने उसे मैनिपुलेट किया ये कहकर कि वो उसके साथ टेनिस रैकेट के बारे में कुछ बात करना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद बॉबी फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। उस टाइम पर लियोपोल्ड कार चला रहा था जबकि लोब बैक सीट पर बैठा हुआ था। जैसे ही बॉबी कार के अंदर बैठा तो लोब ने एक मेटल चेजल से उसके सर पर कई दफा हिट किया, जिसके बाद उसको ड्रैग कर बैक सीट पर खींचा और उसके मुंह पर हाथ रखकर मल्टीपल टाइम चेजल से उसके सर पर हिट किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लोब ने उसकी बॉडी को बैक सीट के फ्लोर पर छुपाया ताकि लोगों की नजरों से उसकी बॉडी को छुपाया जा सके, और वो जाने लगे अपनी प्री डिटरमाइंड डंपिंग स्पॉट पर जहां वो बॉबी की बॉडी को हाइड करने वाले थे। वो केनवुड से कुछ ही माइल्स दूरी पर लोकेटेड एक लेक, वुल्फ लेक के पास गए, जहां पर पहुंचने के बाद उन दोनों ने बॉबी के कपड़े उतारे और उसके फेस पर और उसकी बॉडी पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेंका ताकि उसकी आइडेंटिटी को कंसील किया जा सके, और उसकी बॉडी को एक ड्रेनेज पाइप में फेंक दिया और वापस शिकागो आ गए। वो दोनों काफी खुश थे अपने प्लान की एग्जीक्यूशन से। जब तक वो शिकागो वापस आए तो बॉबी की मिसिंग रिपोर्ट पूरे टाउन में फैल चुकी थी। वो दोनों लोब के घर आए और वहां उन्होंने अपनी रेंटेड कार साफ की और बॉबी के कपड़े जला दिए, जिसके बाद लियोपोल्ड ने बॉबी की मदर को कॉल की एक फेक नाम बताकर उसने खुद को जॉर्ज जॉनसन इंट्रोड्यूस करवाया और बॉबी की मदर से रैंसम मनी डिमांड की। उसने बताया कि उन्होंने बॉबी को किडनैप कर दिया है और उनसे रैंसम मनी डिमांड की, और उन्हें एक मेल सेंड की जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन थी कि रैंसम मनी को कहां पर लेकर आना है। लेकिन उनका प्लान तब नाकाम हुआ जब अगली ही सुबह वुल्फ लेक के पास काम करने वाले वर्कर्स को बॉबी की बॉडी मिली। पुलिस को वहां पर बुलाया गया और आइडेंटिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये बॉडी 14 साल बॉबी फ्रैंक की थी। अब ऑब्वियसली बॉबी की फैमिली को पता चल चुका था कि वो किडनैप नहीं हुआ बल्कि उसका मर्डर हो गया है, तो अब रैंसम मनी तो उन्हें नहीं मिलने वाली थी। लोब और लियोपोल्ड का मोटिव मनी नहीं था बल्कि वो इस केस को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। लेकिन अगले ही दिन बॉबी की बॉडी मिलने के बाद उनका सारा प्लान उल्टा पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने उस टाइपराइटर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे मेल लिखी गई थी। अब जब बॉबी फ्रैंक की बॉडी मिली तो उसके पास एक पेयर ऑफ ग्लासेस मिली। अब उन ग्लासेस की फ्रेम और परसेप्शन नॉर्मल थी, लेकिन उन फ्रेम पर एक मार्क था, और जब उस मार्क को ट्रेस किया गया उस फ्रेम की शॉप पर पुलिस गई तो उन्हें पता चला कि ये फ्रेम शिकागो में सिर्फ 3 ही लोगों ने खरीदी हैं, जिनमें एक लियोपोल्ड भी शामिल था। लियोपोल्ड को बुलाया गया और उससे इन्वेस्टिगेशन हुई। लियोपोल्ड से क्वेश्चन किए गए और लियोपोल्ड ने बताया कि मुमकिन है कि पिछले वीक वो वहाँ गया था और
बर्ड वाचिंग ट्रिप के दौरान उसकी ग्लासेस उसके जेब से गिर गई होंगी। 29 मई को लोब और लियोपोल्ड दोनों से फॉर्मल क्वेश्चनिंग की गई। उन दोनों ने बताया कि मर्डर वाली रात उन्होंने लियोपोल्ड की गाड़ी में 2 औरतों को लिफ्ट दी थी और उन दोनों को उन्होंने गोल्फ कोर्स के पास छोड़ा था, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं पूछा था। लेकिन ये स्टेटमेंट फेक साबित हो गई जब और लोगों के बयान सामने आए। लियोपोल्ड चौफर ने बताया कि मर्डर वाली रात लियोपोल्ड की गाड़ी वो रिपेयर कर रहा था और चौफर की वाइफ की स्टेटमेंट से ये बात कंफर्म हो गई कि उस रात लियोपोल्ड की गाड़ी पार्किंग गैराज में ही थी, यानी लियोपोल्ड और लोब दोनों झूठ बोल रहे थे। इसके अलावा जून 7 को पुलिस को जैक्सन पार्क लगून में वो डिस्ट्रॉयड टाइपराइटर भी मिला। अब उन दोनों के खिलाफ काफी सारी स्टेटमेंट्स और एविडेंस सामने आ गए थे। रिचर्ड लोब पहला था जिसने इस क्राइम के बारे में कन्फेस किया और उसने ये कन्फेस किया कि उस रात उन्होंने ही बॉबी फ्रैंक का मर्डर किया था। लोब के कन्फेशन के बाद लियोपोल्ड ने भी ये कन्फेस कर दिया कि उन दोनों ने ही बॉबी फ्रैंक का मर्डर किया था। लोब ने बताया कि वो फ्रेडरिक नीचे की एक फिलॉसफी ओबरमेंट से इंस्पायर था और वो खुद को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर फील करवाना चाहता था। इसके अलावा लियोपोल्ड ने ये भी बताया कि मर्डर करने के बाद भी उसे कुछ खास फील नहीं हुआ, बल्कि उसे ऐसा ही फील हुआ जैसे उसे नॉर्मल दिनों में फील होता था। उन्होंने बताया कि वो फ्रेडरिक नीचे की फिलॉसफी ओबरमेंट से इंस्पायर थे और वो एक परफेक्ट क्राइम भी कमिट करना चाहते थे। इस फैसिनेशन की वजह से उन दोनों ने बॉबी फ्रैंक का मर्डर प्लान किया था। इस केस के ट्रायल्स मीडिया सेंसेशन बन गए क्योंकि उनकी फैमिलीज ने एक फेमस डिफेंस लॉयर क्लेरेंस डेरो को हायर किया था। डेरो ने उन्हें बताया कि दे शुड प्लीड गिल्टी रादर देन ट्राइंग टू प्रूव द पॉइंट दैट दे आर इनोसेंट। डेरो ने उन्हें ये मशवरा दिया कि वो अपने क्राइम को मान लें। डेरो का बेसिक गोल था कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी से बचाया जा सके। क्लेरेंस डेरो ने आर्ग्यू किया कि वो दोनों इविल नहीं हैं बल्कि मेंटली डिस्टर्ब और एक डिलीजन का शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और इन लंबे ट्रायल्स और आर्गुमेंट्स के बाद जज ने लियोपोल्ड और लोब को लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 99 ईयर फॉर किडनैपिंग की सजा सुनाई। लोब को 1936 में एक फेलो इनमेट ने जेल के अंदर ही कत्ल कर दिया, जबकि लियोपोल्ड ने 30 साल जेल में गुजारे और वो 1958 में पैरोल पर रहा हो गया। ये केस एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरह मिस इंटरप्रेट फिलॉसफी, पीस ऑफ लिटरेचर और कॉन्सेप्ट इंसान के माइंड पर इफेक्ट डाल सकता है। किस तरह लोब और लियोपोल्ड ने एक कॉन्सेप्ट को मिस इंटरप्रेट किया, उसको अपने हिसाब से चेंज किया और उसका मिस यूज किया। वो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। वो दोनों उस फिलॉसफी को जीना चाहते थे और वो इस मर्डर प्लानिंग के दरमियान ये भूल चुके थे कि परफेक्ट मर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एक मिथ है, क्योंकि इंसान हमेशा कोई ना कोई एरर कर देता है। तो ये केस था लियोपोल्ड और लोब का। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।